So we have structured this discussion in a particular flow. The idea of having this discussion with you is so that you have a particular vision that reflects the vision of Sanjeevani Group as an entity in the society, which is the prime business of which is creating homes for people. But at the same time, how this industry is going against conservation, and how is your vision helping the group to contribute towards the conservation of the ecological aspect in general, is what we plan to discuss over here. Perfect. Okay, so now would you like to tell us something about what Sanjeevani Group is and what is the vision of the group? Okay, basically like any other developer group, we are in development of homes, mainly residential development and commercial. And when you call actually development, it hardly matters whether you develop residential, commercial plots or anything. It's you develop something new where families will be coming for their future, as well as if someone is going to use your workplace, he will be thinking of flourishing his business over there. That should be the agenda of any development. We'll see, basically in the development, I personally feel, thanks to my environment background, it's not about, when you say developer, why the word developer has come in the picture in the first place. We take development, word development in very narrow fashion till now. The developer is a builder, build something and sell it and makes money, gets out of it, that's it. See, when you call development, it's the entire development of life of the people who will be residing over there. And when you call is development, if you go for a long way, if you want to go, then it should not be just the people also. It should be the everybody around that premise. And when you say everybody, it's not just humans, it's flora and fauna also. Like when you call something as a forest, for example, you have been to forest. जब हम लोग किसी चीज़ को फॉरेस्ट बोलते हैं तब सिर्फ टाइगर फॉरेस्ट नहीं होता, उसका एंटायर हैबिटेट फॉरेस्ट होता है, पूरा इकोसिस्टम होता है. एंड व्हेन वी से टाइगर बचाना है, एट दैट टाइम वी शुड नॉट बी सेइंग यू कांट गोद में उठाया एखादा टाइगर को बचा, ऐसे नहीं होता. इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग, and for that you have to conserve the entire forest around it, habitat around it, then the tiger gets conserved. Yeah, तो जैसे जंगल में कहावत है, no grass no tiger. Yeah. Same way, जेव्हा when you say कि development, so the development should not be restricted कि तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, बेच के निकल गए, पैसे कमाए. What's fun in that? The people who will be residing over there, people who will be working over there, they should be also get benefited from the thing which you have built, that environment you are building. So that is, very frankly, when I started doing not just Sanjeevani, whenever I was working also as an engineer, as a planning engineer in my past for a long time, that was, I won't call it as a vision. Vision is a too big thing. I say what you should know purpose of why you are doing your job. What is vision? Vision is knowing purpose. Vision is nothing. I don't consider vision. It's a too big a word. Why I built a home? Why we built a home? Why we built an office? The purpose should not be obviously money making. Everybody does, but the purpose should be in thorough development of that place and the people and everybody associated with that place. Is the vision or is the purpose? What I will put it in different way. This is the purpose of Sanjeevani, to make everybody associated with that land, with that space, at peace, prosper, and that is possible when you take into account everybody associated with that place, not just the client as such. Again, client has got a very wide definition. The one who comes to you, तुम्हारे पास जो आता है चेक देके बुकिंग करता है, वो क्लाइंट नहीं होता. मेरे पास सवेरे जो मॉर्निंग में पेपर डालने वाला या दूध डालने वाला लड़का है, वो भी मेरा क्लाइंट है. बिकॉज समहाउ ही इज एसोसिएटेड टू विथ माई कंपनी इन सम वे. समहाउ आई एम सपोज टू सर्व हिम इफ ही इज सर्विंग मी. कोई भी सर्विस मुफ्त में नहीं देता. अ गाय हु सर्व्स यू, ही एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न, दैट इज योर सर्विस टू यू. सो that is the purpose. Everybody who will be associated with Sanjeevani in some way, on some project, should prosper together.
दैट्स द पर्पस. और ये तभी पॉसिबल है, एज आई राइटली सेड, कि व्हेन इन प्लानिंग यू कंसिडर, ऑब्वियसली नोबडी इज परफेक्ट एंड दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. एक रात में जंगल बनानी है, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होने वाला. इट्स अ प्रोसेस गोइंग ऑन फॉर एजेस एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. परसों जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो उस टाइम के नॉलेज से, मेरे एफर्ट से परफेक्ट था. कल मैं बनाऊंगा वो शायद और अलग होगा. बढ़िया नहीं बोलूँगा मैं, निगेटिव भी हो सकता है. सो दिस इज द फिलोसफी आई कैन से, और पर्पज बिहाइंड संजीवनी. कल उठ के व्हाट आई विल बी लिविंग बिहाइंड, आई वोंट बी लिविंग बिहाइंड लैंड्स एंड आई वोंट बी लिविंग बिहाइंड 100 बिल्डिंग मैंने बनाया होगा. व्हेनेवर पीपल विल बी, हम लोग जो बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर रेपुटेशन. मुंह पे सभी जन अच्छा बोलते हैं. सो द पर्पज ऑफ संजीवनी इज व्हेनेवर somebody mentions name of Sanjeevani, they will speak, good or bad is not that, they will speak what fact we did for them, and the focus should be, we should minimize the negative part of it. I think that's the best thing. Whatever, see, I never wanted this company to restrict to building. There are so many aspects open in new era. कुछ भी कर सकते हैं उस बैनर के नीचे, बट कुछ भी करने के बाद आउटकम क्या होना चाहिए, दैट इज योर फिलोसफी और दैट इज द पर्पस. दैट इज so prosperity of everybody associated with it. All the stakeholders, including the fauna, flora, residents, everyone. Like we encroach on something. Let me be very frank about something. कि हम लोग जो बोलते हैं ना एको फ्रेंडली होम्स वगैरह वगैरह, एको फ्रेंडली वगैरह कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग एको. यू कांट बिल्ड एनीथिंग विच इज एको फ्रेंडली. लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट. आई हैव स्पोकन इट इन माई लेक्चर्स ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ एनवायरमेंट स्टूडेंट्स. नथिंग रॉन्ग. एको फ्रेंडली आई वोंट से, एको अकोमोडेटिंग यू कैन से. लाइक देयर इज नथिंग इन वर्ल्ड वाटर प्रूफ. वाटर रेजिस्टेंस इज द वर्ल्ड. आप एक कंटेनर में पानी जिंदगी भर के लिए रखो, पानी की इतनी ताकत है वो कंटेनर को छेद करके निकल जाएगा आज ना कल, प्रोवाइडेड इट डोंट एवापोरेट और गेट लॉस्ट ऑन इट्स ओन. दिस इज आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली. मुझे वाटर प्रूफिंग, व्हेन जो द टर्म वाटर प्रूफ इज रॉन्ग. नथिंग इन वर्ल्ड इज वाटर प्रूफ. वाटर रेजिस्टेंस, दैट इज द वर्ड. सेम वे nothing is eco friendly. You do any man made thing is eco unfriendly only because it is encroaching on something. जो चीज़ भगवान ने नहीं बनाई वो eco friendly हो ही नहीं सकती. That simple of thing. Now what we can do is, but that doesn't mean कि we should stop doing anything. We have our requirements and we have to fulfill them. घर is अपनी requirement है. जब आदमी नेचुरल बने हुए गुहा में या पेड़ पर रहता था, दैट वाज इको फ्रेंडली होम, बिकॉज भगवान ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, हम सिर्फ उसका यूज कर रहे थे. द मोमेंट वी स्टार्टेड बिल्डिंग अवर ओन, इट इज एनक्रोचमेंट ऑन नेचर. इट इज डैमेजिंग ऑफ नेचर इन सम वे और अनदर. सिंपल लॉजिक आई विल टेल यू. एक एम्प्टी प्लॉट है, एम्प्टी प्लॉट के ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हो और 5 स्टार क्या 7 स्टार रेटिंग वाला इको फ्रेंडली बिल्डिंग में आपने बनाया, तो भी वहाँ पे उस जमीन को खड्डा खोद के, वहाँ कुछ चींटियाँ थी, वहाँ कुछ लिजार्ड्स थे, वहाँ कुछ ग्रास था, वो आपने उखाड़ के फेंका, खत्म. इट कांट बी, इट वोंट कम एवर बैक अगेन. आप उन चींटियों के लिए जगह बना रहे हो? नहीं. आप उन लिजार्ड्स के लिए जगह बना रहे हो? नहीं. सो यू आर डैमेज देयर हाउस परमानेंटली. आपने वहाँ 2 भी पेड़ थे, वो काट के कारपोरेशन से परमिशन लेके नए पेड़ बनाए, लेकिन वो पेड़ के ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु स्क्विरल्स है वो जिंदगी और के लिए चले गए. Can you call this as eco-friendly? No. But that doesn't mean you should stop doing building. What you can do is counter damage what you have done. That is accommodating environment. I never called my friend eco-friendly. No way. I don't do anything eco-friendly. I try to say it as I try to accommodate environment as much in my project. So it's like creating a balance between. Maintaining a balance. See, because we are humans and we make our laws, so we can make laws saying कि we are eco-friendly. आप 10 लोगों की जान लो और बचाओ, बोलो मैंने 20 लोगों को जन्म दिया, तो 10 लोगों की जान के लिए अभी मैंने 10 तो और पैदा किया. Will it counter balance? It will never. 10 लोगों की जान तो गई जिंदगी और के लिए. So I think once you understand this aspect,
then only you can touch the subject. That's why. So this is the purpose. It's not about just and then nothing wrong means we have our needs. Like in nature also, every survival depends upon someone's destruction. That's simple. A tiger survives by killing deer. If you say tiger go eco-friendly, भूखा मर जाएगा. So every survival depends on some destruction. Only thing is that if you start destructing everything for your survival, one day you will be also getting destructed. So what my advice or what my purpose of building is, I try to build something for my survival, but at the same time I try to see that I don't destruct everything. And if I am destructing something, I am trying to create something in my best capacity or conserve whatever is possible. Like there are 10 trees on my premises, I will see that I will try to save all 10 trees while building my building. If at all I can't do, I will try to shift them. If at all that also I can't do, I will see that I will plant 100 new trees. Don't go just by numbers. Means because if I cut 10 trees, new 100 trees will take 10 years to bring that kind of balance. Out of that 50 might not survive. But if I plant 100, then 10 will definitely survive. This is the way you should do. Another thing is that when I am trying to build something, there are parameters. See, environment science and ecology is ever evolving. It will never stop evolving. Every time you have to study what you want to accommodate. Like they say save water. Agreed, save water. But what do you mean by save water? पानी पीना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, कार धोना छोड़ दो? नहीं, it's not that. Whenever you say save something, that means use it wisely, use it, optimize it as much you can. And all these aspects, see, environment accommodating for the timing we will use eco-friendly because people know that term more. They're used to that. In one day I can't change the chronology of the people. When you say something eco-friendly, it doesn't mean stop using something. It means try to minimize your needs. Nature survives on need, not on greed. Unfortunately, we are entered into in a zone where we are forgetting our needs and we are going by greed. Like you give Jaguar shower, you give lavish tiles, you make lavish bathrooms, you make people stand below shower for 20-30 minutes when a bath can be done in 5 minutes. That next more than 5 minutes is wasted of water. Simple logic. Again, it's an individual choice what to do, but at least I should guide people accordingly. Then everybody is free to live by. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको बोलेगा यार दारू मत पियो, सिगरेट मत फूको, उसके बाद आपको पीना है, that's not doctor's problem, that's your choice. Same way in eco-friendly planning or purpose or vision, I can make my project fitting to best knowledge at that time for that purpose, but ultimately it depends upon the resident or the user of that project how he is going to use it. So but दिया ही नहीं मैंने और बताया ही नहीं, then I am at fault. So all you need to do is make someone conscious of their choices. Correct. That is what I think is a missing link. And unfortunately, in real estate, more and more people see, everybody is free to advertise and everybody is free to have their own ideology and philosophy to sell their product, because ultimate purpose is to make some money. Yeah, I'm coming to that in my next question. So what you've summed up in this perspective is number one, the concept of development in general, because people used to look at development with a very, very myopic perspective. That development matlab building khada kiya, bech diya. But the real meaning of development, which is developing in the sense, with taking all the stakeholders into consideration, has been lost throughout the times. Fair enough. Second thing is the way now I've been in Pune for more than 20 years. I've seen the real estate
industry. I'm calling it an industry because it's no longer a vertical. It has become bigger than some of the It is. industries like the media industry. Yeah. Real estate of Pune is much bigger than the national media industry put together. Obviously. So we are talking about almost a 65,000 to a 90,000 crore industry. Unfortunately, nobody has got the exact figure itself because you are not considering resale in that. This is only That's what I say. But resale still is that real. to residential. Yeah, that to residential and rental then again. Yes. So it's a very unfortunately we are a industry where data has never been given priority. Absolutely. When nobody knows exactly how many houses are in Pune, nobody knows exactly how many houses Pune needs, nobody knows exactly what kind of segment that housing is required. Nobody cares for that. And like automobile industry, every month you have got a record of every vehicle hitting the road. Absolutely. Every month you have got a record of a daily sale all over region कितना हुआ है. Pune में या real estate में why Pune? Anywhere that nationally that data is not there because there is no single governing authority. Agreed. And then the industry is too raw. Like RERA is there, but आप RERA के पास गए ही नहीं तो. In some aspects of the industry are still very unorganized. Exactly. Thousand of people आज ऐसे कि जो बिल्डर करके लोगों को मालूम भी नहीं है वो बांध रहे हैं और बेच भी रहे हैं उसे और लोग ले भी रहे हैं. So that's the concern that I was coming to, that you see the industry, I won't say growing, but exploding at such a rate, year on year. So even during the worst of the times, may it be lockdown, may it be the depression of 2008, post which the 2011 slowdown, the real estate industry of Pune has not been that severely affected. And to top it up, when we talk about an absorption ratio of more than 80% year on year, who are buying? And should they be concerned, should people who are planning to invest in housing or have already bought a house, should be concerned a decade or two from now on? Will their lifestyle, will it be adversely affected? Are we going the same way as some of the bigger cities but without any plan in mind? Unfortunately, we too are too small a fish to speak. I won't say speak to do anything on this, but this is exactly where most real estate industry people take convenient stand. मेरे से क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, what alone I can do. These are the rather 90% people give a damn to all these things. Frankly, जो बच्चे 10% है उनमें से 90% बोलते हैं यार समझता तो सब कुछ है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ. As simple as that. Like every day रीडेवलपमेंट के ऊपर और रीडेवलपमेंट की वजह से जो डैमेज हो रहा है सिटी का, यू रीड 10 आर्टिकल्स इन द पेपर एंड एवरी डे 10 मोर गेट फॉर रीडेवलपमेंट इन द सेम वे अर्लियर हैज हैपेंड. सो हु इज डूइंग दैट and who is buying home in that? Somebody from us only is doing that. This is the biggest problem. मराठी में एक कहावत है की शिवाजी जन्मले पाहिजे पण दुसऱ्याच्या पोटी. एवरी पेरेंट्स वांट शिवाजी टू बी बॉर्न बट अदर्स हाउस, मेरे हाउस में नहीं, क्योंकि कभी भी मर सकता है. ऐसी जिंदगी कौन जिएगा औरंगजेब से झगड़ा करके हर रोज जिंदगी. सो that is the problem कि everybody wants to become an ideal builder but somebody else should be the ideal builder, and every society wants environment to be conserved but some other society should do that. मैं लॉस नहीं करके लेने वाला. ये दिस टेंडेंसी जितने लोग पुणे के डिग्रेडेशन के लिए या टचवुड कंपैरेटिवली टू ऑल सिटीज इन आई हैव फॉर्चुनेट, मैंने काफ़ी शहर देखे भारत के, एब्रॉड से मैं कंपैरिजन नहीं करता क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मेनी एस्पेक्ट्स द डेवलपमेंट. बट पुणे के साइज के जितने भी सिटीज़ इंडिया में है, आई कैन से ब्लंटली कि इट इज़ मच बेटर देन एनी सिटी इन इंडिया. इसमें अपना कोई हाथ नहीं है, ये भी मैं बोलता हूँ. दिस इज जस्ट बाय लक वी हैव सर्वाइव्ड. सी 4 बच्चे अनाथ हो जाते हैं, एक इंस्पेक्टर बनता है, 3 चोर बनते हैं. वो बच्चे का लक है इतना बोल सकते हैं. That simple. In the picture, I am a die-hard follower of Bollywood movies because it is directly linked to our day-to-day things. So that's way. If you see growth of Pune, why Pune? Geographically 30-40 years back, yes, it was a good city, पानी अच्छा था, environment अच्छा था. ऐसे 100 सिटी थे उस टाइम 30-40 साल पहले इंडिया. Every state has got one education city. Agreed. Every city. Agreed. Why Pune?
समटाइम्स इतना ही हुआ, एज आई सेड, कि sometimes you start winning in a gamble, okay, many people start winning and only a few continue the streak of winning. That doesn't mean you will win forever. पुणे का स्ट्रेक थोड़ा लंबा चला, इतना मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज सेम थिंग हैव हैपेंड वैसे। और वैसे भी देखा जाए तो अर्बनाइजेशन हैज स्टार्टेड इन इंडिया जुम्मा 40 साल 30 साल, जो कंट्री को फ्रीडम मिल की 75 साल हो गए। वी आर टू यंगर कंट्री टू कॉल ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। 30-40 साल ये सिटी का हिस्ट्री नहीं हो सकती। लुक एट यूरोप, लुक एट मेडिटेरियन कंट्रीज, फॉर दैट लुक एट यूएसए विच इज इंडिपेंडेंट फॉर नाउ मोर देन 300 ईयर्स। तो वहाँ के जो सिटी ग्रो हुए एंड दे मिजरेबली फेल्ड। 300 साल is a sizable thing, and now you look at them why they have failed, and Pune is marching on lines of few of them. If we don't correct ourselves in time, 100 साल में people don't want to, may not be wanting in stay in Pune. Who knows? Like Bangalore, people are already evacuated. Many people. Like many other places. Simple logic है. Why Pune में आज कौन आ रहा है? सेंट्रल इंडिया के टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, रूरल महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, ओके। व्हाई दे आर लिविंग देयर ओन होम टाउन? देयर इज सम रीजन। किसको अपना घर छोड़ना पसंद है? आई केम फ्रॉम नागपुर, आई केम फ्रॉम अमरावती, आई एम नॉट पुणे गाइड, आई गॉट सेटल्ड ओवर हियर एंड मेनी ऑफ माय कस्टमर्स देयर, वी ऑल नो, ओके। गिव अस अनदर चॉइस विच इज बेटर देन पुणे, वोंट पीपल गो टू देयर? आज वो नहीं है, इसलिए वी आर सर्वाइव नाउ। हियर द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर अगेन कम इनटू द पिक्चर। जो मैं बोल रहा हूँ कि पर्पज ऑफ द एंटायर रियल एस्टेट ऑफ पुणे शुड बी हाउ दे कैन कंजर्व व्हाट पुणे इज व्हाइल डूइंग द डेवलपमेंट। इफ वी डोंट डू दैट स्टार्ट राइट नाउ, इमेजिन करो आज जो लोग रीडेवलपमेंट को 80% बढ़ा के दे रहे हैं, 100% बढ़ा दे रहे हैं, एंटायर रियल एस्टेट इफ दे डिसाइड कि इसके ऊपर हम देंगे ही नहीं, क्योंकि सिटी डैमेज होगा। सर थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, बिकॉज द टीम वुड नीड सम डिटेल्स ऑन दिस 80% एंड 30%। बट एक फ्रॉम अ वेरी लेमन पर्सपेक्टिव, अगर कोई आज घर खरीदता है पुणे में, या जिसने पिछले 10 सालों में घर खरीदा है पुणे में, अगले 10-20 साल में उसको उस घर में रहने को अच्छा लगेगा? 10-20 साल में यस, 10-20 साल में यस, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस, 10-20 साल में पुणे को पैरेलल अल्टरनेटिव नहीं तैयार होने वाला। आज भी आप, इसलिए पुणे हैज गॉट द ब्लेसिंग कि आज भी पुणे के बराबर का दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ जो लाइफस्टाइल मिल रही है वो बाकी जगह नहीं है, इसलिए पुणे बढ़ ही जा रहा है। आज भी पैसे देके यहाँ पानी मिलता है। आई कम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पैसा देके भी पानी नहीं मिलता। आज पुणे में फुटपाथ है, आप औरंगाबाद जाओ, औरंगाबाद में फुटपाथ नहीं है। यू कैन वॉक ऑल्सो। हम लोग फुटपाथ को लेते हैं, औरंगाबाद को फुटपाथ ही नहीं है। नागपुर में सब कुछ है, नागपुर में लोग ही नहीं है। नागपुर का इंफ्रा काफ़ी अच्छा है। नागपुर का इंफ्रा काफ़ी है, लोग ही नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जॉब क्यों नहीं है तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन क्यों नहीं है, जॉब नहीं है। इट इज लाइक पहले अंडा का पहले मुर्गी। यहाँ क्या हो गया, यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ है तो लाइफस्टाइल नहीं है। मीन 10 बजे नागपुर जैसे कर्फ्यू लगा ऐसा बंद हो जाता है मोस्ट ऑफ द नागपुर। सो सी वंस अ फैमिली गेट प्रॉस्पर्ड दे वांट टू स्पेंड ऑल्सो, तो वो स्पेंड के लिए जगह ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा। सी दिस इज द वे लाइफ ऑफ अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रोज। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे घर या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अबाउट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। आप किसी भी शहर में जाओ और व्हाट यू लाइक फर्स्ट, इट्स अ फील ऑफ द सिटी, हम लोग बोलते हैं वाइब ऑफ द सिटी, फील ऑफ द सिटी। आप पुणे में, और आज कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। जरूरी नहीं है कि हर कोई खुद अमेरिका जाए और हर कोई सिंगापुर जाए और हर कोई दुबई जाए, बहुत लोग जाते भी हैं, ओके, लेकिन बहुत लोगों को वही पता चलती है। तो यहाँ जो आदमी आता है उसने शायद आउट ऑफ इंडिया देखा नहीं रहेगा,
लेकिन उसको पता है क्या रहता है अर्बन, एक बड़ा शहर क्या रहता है, और वो सारा यदि आपको यहाँ मिलता है, ऑब्वियसली यू विल फील कि आई विल सेटल डाउन हियर। कोविड के बाद जैसे हुआ, आई विल टेल यू द बेस्ट एग्जाम्पल, कोविड सारी दुनिया के लिए एक कर्ज था, पुणे के लिए वरदान बन गया। फर्स्ट वेव में हर कोई पुणे छोड़ के भागा, सेकंड वेव में हर कोई पुणे की तरफ भागा। क्यों? ऑक्सीजन वाले हॉस्पिटल नहीं, सिंपल लॉजिक। और दूसरा वाला में भी अभी जैसे खामगांव, माय मॉम एंड डैड रिटायर्ड एट अ स्मॉल टाउन इन विदर्भ। खामगांव में टोटल पॉपुलेशन 1.5 लाख और ऑक्सीजन के बेड 10। अभी मैंने, मेरे 2 डॉक्टर दोस्त हैं वहाँ, पूछा आप बढ़ाते क्यों नहीं? अरे बढ़ाया और कोड़ी जाने के बाद क्या करूँ बेड का? फुटफॉल तो चाहिए ना उतना। ऐसा नहीं है कि आज कोविड के लिए मैंने 25 बेड का ये बनाया, पोजीशन बनाया ऑक्सीजन वाला, एंड व्हाट अबाउट कोविड आने के बाद वो 25 के मैं सो क्या अकेला उसके ऊपर? तो ऑब्वियसली दोज मॉम एंड दोज पेरेंट्स हु डिडंट वांटेड टू कम डाउन टू पुणे बिकॉज उनको लगता था कि पुणे में हमको क्या लाइफ नहीं है वगैरह वगैरह, एटलीस्ट फॉर पब्लिक हेल्थ नाउ दे आर रनिंग टू पुणे। So many things are happening. Means, see, this is how it's like a. I will tell you, it's like a golf में. Golf में you get a handicap. Okay, Pune has got a handicap. I will tell you. Already Pune ahead था. तो जब सारी दुनिया के ऊपर नौबत आ गई तो Pune already ahead था. But this is the time. See, मुझे एक बात बताओ, जब सब कुछ बुरा है तो हर कोई सर्वाइव होने का ट्राई करता है, बराबर है। पुणे प्रॉब्लम है, पुणे के पास बुरा कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है, इसलिए कोई काउंटर बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। पहला समर है ये जिस टाइम एसी का से लेके सबका डिमांड बढ़ गया और लोगों को लगा कि अभी यदि नहीं किया तो मर जाएंगे। सडनली इफ यू रियलाइज कि यही साल में क्यों पेड़ लगाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पानी बचाओ चालू हो गया है, क्योंकि पहली बार झटका बैठा। सो I think right now if you try on all these lines, maybe और 30 साल पुणे को झटका नहीं बैठेगा, maybe और 30 साल is why I am saying 30 years, because एक लाइफ साइकिल रहती है आदमी इन एनवायरमेंट साइंस। 60 साल से 65 साल यदि एक जनरेशन मानी जाती है तो उसका प्रोडक्टिविटी टाइम सेंट्रल 30 साल ही होते हैं, क्योंकि पहले 15 साल यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, आखिरी के 10 साल यू आर अगेन डिपेंडेंट ऑन समथिंग। सो एक आदमी का प्रोडक्टिव जो टाइम स्पैन होता है वो 30 इयर्स का पकड़ते हैं, इसलिए 30 इयर्स एनवायरमेंट साइंस के हिसाब से साइकिल मानी जाती है। तो आज से 30 साल तक आई डोंट थिंक एनी वरी टू पुणे, नॉट दैट कि लाइफ विल बी सेम, लाइफ विल कीप ऑन डिग्रेडिंग, बट उससे भी डिग्रेडिंग बाकी जगह पे होता जाएगा। और जब तक 30 साल में देयर वोंट बी एनी अदर मेजर अल्टरनेटिव टू पुणे, इन पुणे रियल एस्टेट विल कीप ऑन फ्लरिशिंग। दैट डजंट मीन लाइफस्टाइल विल फ्लरिश, लाइफस्टाइल में डिग्रेड। आज बॉम्बे कैसे हो जाएगा? बॉम्बे में दो ही लोग आते हैं आज, सुपर रिच एंड सुपर पुअर। मिडिल क्लास जाता ही नहीं बॉम्बे, पॉसिबल ही नहीं। बट considering 150 crores of our country, super rich and super poor are equally more, so बॉम्बे चलते ही जा रहा है। Will you call it as a lifestyle? आज given a choice, हम में से किसी को बॉम्बे में रहने जाओ बोलोगे, जाएगा क्या कोई? अपने आप पे नहीं जाएगा। जो प्रॉपर बॉम्बे वाला है वो ही जाएगा। हम लोग बोलेंगे नहीं भैया, मेरे को ऑप्शन रहेगा तो मैं बॉम्बे नहीं जाऊँगा। दिस इज वेयर challenge in front of Pune real estate industry stands, and I think this is what I try to cultivate, and there are people who understand, we are understanding it. जैसे मैंने बोला कोरोना was a curse, but for many industries it was boon, like wildlife tourism, it was boon. लोगों को नेचर के बारे में पता चला, नेचर का इंपॉर्टेंस पता चला, नेचुरल लाइट ऑक्सीजन का पता चला, पता था, जरूरत नहीं पड़ी थी। 2 साल के लिए वो इंडस्ट्री वैसे ही छोड़ दिया गया। एंड देन देयर इज थिंग कि मुझे मालूम होना एक बात है, और मालूम होने के बाद मैं क्या एक्ट अपॉन करता हूँ वो दूसरी बात है। तो नाउ वी हैव रियलाइज कि दीज एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली एज ऐसे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। जैसे इको फ्रेंडली हाउसिंग की, मैं इको फ्रेंडली हाउसिंग के लिए 50 रुपये ज़्यादा देने को तैयार हूँ क्या? मेनी पीपल से कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। अनदर एस्पेक्ट, एक बिल्डिंग है
जो मुझे चाहिए वो लोकेशन पे है, ओके, बट इट्स नॉट इको फ्रेंडली, किसी भी पैरामीटर पे वो बैठती है। और एक बिल्डिंग है थोड़े मेरे लोकेशन से दूर है, बट इट इज इको फ्रेंडली। द डे आई विल बुक देयर एंड नॉट बुक हियर, आई विल से दैट डे वी हैव बिकम मैच्योर्ड ऑन दिस फील्ड। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, इट विल बी देयर, बिकॉज आज भी इन रियल एस्टेट ऑल वी थिंक अबाउट लोकेशन एंड रेट ऑल्सो मेरे बजट में है क्या, मुझे क्या मिल रहा है इसकी फिक्र नहीं है मुझे, मेरे बजट में है क्या। आई थिंक नीड ऑफ द टाइम इज लाइक ईवी व्हीकल्स का, ओके, सडनली 2.5 years बैक ईवी व्हीकल वाज इन टोटल डिमांड, people just went on, नहीं EV vehicle लेता हूँ. The moment they realize the practical hazards in operating that thing, again this year the graph is coming down, right from Tesla everybody got it. Same way it will happen. Maybe real estate is the product which is fixed at one place. The product can't come to you, you have to go to product. The only product in the world, rather I will say. So it will take time to change also. Compared to any other industry, the real estate is a very local industry. So maybe it will take time, but it has to change. There is no option for that. Okay. So I have only 3 more questions left for you. One is on the nature of redevelopment. Are we heading towards disaster as an industry? Second is, what efforts is Sanjeevani as a group taking to ecologically be a part of the bigger picture? And third is, if someone buys a house at Sanjeevani, how does he contribute to this movement? First thing about redevelopment, no, we are not going to disaster yet, because again, why a particular redevelopment society is going for redevelopment is a question one should ask. See, redevelopment came into the picture because of need. Some 10 years back, 12 years back, redevelopment came into the picture because of need. Because the buildings were old, dilapidated, maintenance possible नहीं था लोगों को, quality of construction was not that at par with today's construction, lifts नहीं थे, parking arrangements नहीं थे, margins कम थे क्योंकि वो 10 feet margin वाले buildings थे, ये सब चीज़ें थी. देन इलेक्ट्रिक मीटर सिंगल पूरा वायरिंग जो था वो सिंगल फेस वायरिंग था, एसी और गीजर भी बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस टाइम की. अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपन, जब तक एक आधी चीज आप जरूरत करके करते हो तब तक इट इज गुड. जब एक आधी चीज आप हवस करके करते हो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. Earlier 10 years, if you look, those buildings who have been redeveloped earlier, they were to accommodate these needs of the residents, and उसके बदले जो कुछ मुझे एरिया मिलता है फाइन. लेकिन अभी मुझे एरिया बढ़ा के मिल रहा है इसलिए मैं रिडेवलपमेंट कर रहा हूँ, then it becomes a problem. There the problem started. Like आज रिडेवलपमेंट का जिसका फ्लैट है, आज खुद को एक गाड़ी जगह पार्क करने को जगह नहीं है इसलिए वो रिडेवलपमेंट करा रहा है, लेकिन आज वो भी 2 गाड़ी की मांग कर रहा है, मुझे भी 2 पार्किंग चाहिए, एक्स्ट्रा रूम चाहिए. और अभी ये बिल्डर मेरे को 50% दे रहा है, तुम कितना बढ़ा के दे रहे हो. यहाँ जब गेम आ जाती है ना, देन सी बिल्डर कोई ऊपर से पैसा ला के देने वाला नहीं है आपको. बिल्डर जितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है ज़्यादा उस जगह में से, उसी में से कुछ पार्ट आपको देने वाला है, राइट. So, from where he is going to give you? From loading more people on that. जबकि आपको एक बेडरूम एक्स्ट्रा मिलके भी आपका काम चल सकता था, लेकिन आपको ग्रीड है, आपको पैसा वसूल करना है आपके रिडेवलपमेंट का, इसलिए आपने उससे 3 रूम एक्स्ट्रा मांगे, उस बंदे ने और 6 रूम एक्स्ट्रा मांगे, तो उसमें से 3 वहां से दे सकता हो. तो उसके ऊपर जो लोडिंग हो गया, दैट इज नॉट गोइंग टू एवर that is the disaster, rather I will say. That is not going to ever help the city. It is क्योंकि जो काम आप 2 आदमी 2 फ्लैट बांध के भी कर सकते थे, वहां आपने 4 बांधे, वो लोड कहाँ दे, वो लोड तो सिटी को लेना पड़ेगा.
तो ये बात दोनों ने सोचनी चाहिए कि मुझे सच में मैं रीडेवलपमेंट क्यों कर रहा हूँ. मतलब these are girls there and in very not gender biased thing. I have bluntly shared my opinion in a रीडेवलपमेंट सेमिनार कि आप अपने बच्चे की शादी डाउरी ज़्यादा मिल रही है इसलिए कर रहे हो या अच्छी बहू चाहिए इसलिए कर रहे हो. ये पहले सोचो. ये लड़की ज़्यादा डाउरी दे रही है इसलिए इसकी शादी इससे करूँगा इसलिए आप शादी कर रहे हो या मुझे अच्छी बहू चाहिए इसलिए कर रहे हो. इसके दिस इज लाइक दैट कि सिर्फ मुझे ज़्यादा बढ़ा के मिल रहा है इसलिए मैं रीडेवलपमेंट कर रहा हूँ और ये बंदा 80% दे रहा है इसको दूंगा. अरे वो क्या बांधने वाला है उसकी वजह से आप then you are also become crime to that party. You are also becoming crime to, and then you will say कि ये शहर कितना लोड लेगा, ये पेड़ काट रहे हो, पानी कहाँ से लाओगे, ग्राउंड वाटर डैमेज हो रहा है. क्यों? तुम भी तो पार्टी हो उसके. रास्तों पे पार्किंग की जगह नहीं मिल गई है, फिर रास्ते पे चलता हूँ तो दो बेसमेंट में जा रहे हो आप, ग्राउंड पूरा खा जाएगा. अच्छी बेसमेंट, व्हेन यू गो फॉर बेसमेंट इनडायरेक्टली यू आर रिड्यूसिंग वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ योर सिटी. तो वो पानी रास्ते पे आने वाला, फ्लड में ही कन्वर्ट होने वाला है. बट देन दिस ऑल एक लोगों को पता नहीं है. unknowingly they might be getting into part of that crime. तो I think it's our responsibility of also to make people aware about it. उसके बाद as I say their choice, but at least then you should not blame anybody else for your disaster. ये रही बात redevelopment की. So redevelopment will going to be a disaster for this city. यही रास्ते पे यही लाइन पे चलता रहा तो नीड बेस रहेगा. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. पुराना है वो जाने वाला है और नया आने वाला है. यहाँ तक जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन नया आने के लिए नया लाना है इसलिए पुराने को तोड़ना और नया बनाते वक्त पुराने उसूल भूल जाना, दैट इज वेयर डिजास्टर स्टार्ट्स. सो रीडेवलपमेंट करते वक्त आज मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि अरे यार पहला घर अच्छा था, जब वो रहने को आए तब उनको पता चला कि पहला घर अच्छा था. फाइन, वो टाइम चला गया, वो नहीं होता बस. सो ये बात हो गई रीडेवलपमेंट की. Second part is how a person living. How Sanjeevani as a group is working towards. Exactly. See, like our this session is indirectly part of it. Absolutely. We try to promote lifestyle and promote concept behind this lifestyle. Whenever we try to share something about this to our customers, like right from my greetings, Diwali greetings. If you see my Diwali greetings, I never go for some fancy photo or something like I won't say useless their feelings. I always try to promote, whenever I communicate with our customer, we try to promote wildlife, we try to promote environment, we try to promote these are our duties and this is what we can do. आज जितने भी अपने हैंडिंग ओवर के इवेंट्स होते हैं या भूमि पूजन होते हैं या एनी स्मॉल इवेंट वी डू विथ आवर कस्टमर, nothing wrong in getting celebrities and popular faces. That's fine, that also you can do. I won't say it's everybody's choice again, but at the same time you can call those people who are actually contributing for environment. हमारे किसी भी फंक्शन को या किसी चीज़ को, इवेंट को, we try to call someone who has contributed physically for environment conservation, any part of it. So to promote that is one way you can do. And again, it's the biggest weakness is awareness. Keep making people aware. Somewhere it will follow. Like जैसे मैंने बोला redevelopment में, we are doing redevelopment. I have decided not to do, but with younger generation in and एक उसके पीछे ऐसी भी एक फिलॉसफी है, मैंने नहीं किया तो कोई तो भी करने ही वाला है. ठीक है, फिर सुपारी भी तूने नहीं ली तो कोई तो भी लेने वाला. लो ना सुपारी मारने की. व्हाई डोंट यू बिकम अ मर्सिनरी? दिस इज माय काउंटर क्वेश्चन टू देम. आई हैव सीन मेनी पीपल, मैं नहीं किया था तो वो बंदा बांधने वाला है ना. ठीक है ना, तो डाउट भी सुपारी देता है किसी को, उसने नहीं लिया तू भी ले सुपारी, पैसे उसमें भी. ये अपना इंडिविजुअल चॉइस है. आई हैव डिसाइडेड माय चॉइसेस. आई वोंट डू दैट. I won't do that. So that's why I did 2 projects of redevelopment 10 years back. Then I stopped because I knew that doing this, I will be joining hand with the crime. And again here there are people कि भाई हमारी जगह है, हम चाहिए, हम जिसको जो हमको ज़्यादा देगा उसको ही देंगे. भाई दो ना, मैं कहाँ नहीं बोल रहा. I am not saying, see who I am to define somebody else's right or wrong. I can define my own.
So I have stopped doing redevelopment just because of this, because I don't want to be into rat race. But then 10 years down the line, when my younger generation, you quote for redevelopment and in your presentation you quote this कि आप 60% लोगे तो ये प्लान बनेगा, आप 30% बढ़ा लोगे तो ये प्लान बनेगा, लेकिन इसके एडवांटेजेस है, इसके बावजूद ये यदि 60% पे अड़े रहे वो प्रोजेक्ट करो मत, जो 30% करेंगे वो करो, और 60% करना है संजीवनी नाम मत लगाओ. So basically, and there are people who accept the two redevelopment projects which we are doing. Those people accepted our proposal below than others. They understood, they accepted. So this is the positive sign I will say. I told them कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट होती है कि नहीं उतनी देखिए, उससे ज़्यादा आप मांगोगे तो 4 बेडरूम का किधर और जाके लो ना फ्लैट, यहाँ क्यों जान ले रहे हो इस जमीन की. इस लफ्ज में आई हैव डिस्कस्ड, few of them accepted. Like going to wildlife tourism, मैं हरदम बोलता हूँ यार 4 ट्रिप दुबई जाते हो तो 1 ट्रिप ताड़ोबा भी जाओ, वो पैसा वहाँ खर्चा होगा, वहाँ के लोगों को 2 पैसे मिलेंगे तो ही जंगल बचेंगे. 10 में से 9 जन दुबई ही जाते हैं 5 बार, 1 बंदा ताड़ोबा जाता है. आई एम हैप्पी विद दैट. बट मैंने बताया ही नहीं 10 जनों को, देन आई एम एट फॉल्ट बिकॉज आई नो एंड आई डिडंट टोल्ड. हियर द थर्ड क्वेश्चन कि एवरी दैट एसोसिएट हर कोई जो बंदा संजीवनी के साथ एसोसिएट होता है क्लाइंट बनेगा तो या मेरा कॉन्ट्रैक्टर भी या मेरा कोई भी, तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अवेयरनेस की, कंजर्वेशन की, वाइट जंगल बिल वी डू बाय वर्च्यू ऑफ विच वुमेन्स एंड किड्स, अर्बन वुमेन्स एंड किड्स, वी ट्राई टू मेक देम अवेयर अबाउट वाइल्ड लाइफ, वी फिजिकली हेल्प वाइल्ड लाइफ पीपल, सो मेनी थिंग्स. स्काई इज लिमिटेड, राइट, एंड आई मे नॉट बी एबल टू स्टिच इवन 100 स्क्वायर फीट ऑफ दैट स्काई, बट आई ट्राई. ओके, सो जो भी कोई बंदा अपने से एसोसिएट होता है ऑटोमेटिकली वो खुद नहीं कर पाता, हम कर रहे हैं, मिलके ही हो रहा है ना. यदि जो मेरे पास फ्लैट बुक करता है उसके पैसे में से कुछ पार्ट इस चीज को जाता है, तो दिस इज द वे यू कैन ज्वाइन. जैसे लास्ट टाइम वी डिस्कस कि एको हाउसिंग का जो ग्रीन टीडीआर या ग्रीन एफएसआई है या एको हाउसिंग के जो रेटिंग जो है 5 स्टार रेटिंग वगैरह, व्हाट इज दैट, दे सी दैट एवरी मटेरियल which you are using has to be nominated, has to have got that ISO 14000 which is green thing and all those things. So if I am getting a Kajaria tile which has got a green rating, that doesn't mean कि वो कोई अलग मिट्टी से बनी है और उससे कोई नुकसान नहीं होता, but Kajaria is contributing somewhere for environment, those points are considered in their rating, that's why Kajaria tile are certified for a green rating. Same way unfortunately आज तक रेसिडेंशियल कोई या रियल एस्टेट को ये हुआ नहीं है कि आप संजीवनी के पास फ्लैट लेते हो तो संजीवनी का ग्रीन रेटिंग है तो यू कैन पास दैट ऑन टू समवेयर एल्स, बट अनलेस एंड अनटिल, बट दैट डजंट मीन आई शुड स्टॉप डूइंग दैट. मुझे तो ग्रीन रेटिंग की भी जरूरत नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जरूरी क्या है ग्रीन रेटिंग मांगने की. क्राइटेरिया आर ओपन, यू फॉलो दैट. आई डोंट बिल्ड ग्रीन बिल्डिंग्स बिकॉज आई वांट ग्रीन एफएसआई, फ्री एफएसआई. आई बिल्ट इट बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द कॉज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये जब तक समझता नहीं लोगों को और जब तक ये लाइफस्टाइल नहीं बनती, सी इको हाउसिंग, इको फ्रेंडली हाउसिंग, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है बॉस, और ये एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ का. आई थिंक दैट शुड बी द, मतलब कल उठकर मैं उसका फ्लैट बेचने के लिए यूज करता हूँ, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि यदि मैं सच में कर रहा हूँ तो व्हाई शुड नॉट आई यूज इट. यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो लोगों ने समझना चाहिए कि ये सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं है, मत लो इसके पास, इतना ब्लंट है. लेकिन कुछ भी हो उस बहाने लोगों को समझेगा तो ये एक चीज है जिसकी वजह समझेगा, और जो कोई फ्लैट खरीदेगा ही विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू ओपनली कि ही इज डूइंग, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ओपनली जितना इस बारे में बोला जाएगा, डिस्कस होगा, रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. और जैसे मैंने बोला 10 में से 1 बंदा भी जंगल की तरफ गया, मेरा फ्लैट बेचा गया नहीं गया, इससे अच्छा वो जंगल गया ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए.
That's it. Absolutely.